ورود مسعود کا دوسرا باب جامعہ ملیہ اسلامیہ ننھیال میں بچوں کی تعلیم و تربیت کی جانب بہت کم توجہ دی جاتی تھی۔ نانا صاحب علی گڑھ جاتے جاتے رک رہ گئے۔ بڑے ماموں ضرور پہنچ گئے لیکن انٹرمیڈیٹ کی پہلی کلاس سے ایسے بھاگے کہ مڑ کر نہ دیکھا۔ منجلے ماموں جامعہ ملیہ اسلامیہ بھیجے گئے۔ انہوں نے بھی آٹھویں جماعت پاس کرنے کے بعد مزید تعلیم کی ضرورت نہیں سمجھی۔ مذہبی تعلیم کی جانب بھی توجہ کم رہی۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کسی بھی مولوی سے قرآن کا ایک سپارہ بھی پڑھا ہو۔ میری جہالت کا یہ دور شاید طویل تر ہو جاتا اگر 1926 میں بڑے چچا ڈاکٹر ذاکر حسین جرمنی سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شیخ الجامعہ کے مصنف پر فائز نہ ہو جاتے۔ وہ منظر میں کبھی نہیں بھولوں گا جب فروری 1926 کی ایک سہ پہر اہل قائم گنج کا ایک ہجوم انہی کے لیے ریلوے اسٹیشن پر آ کر گرے کی جانب سے آنے والی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ میں بھی اپنی لمبی ٹانگوں کے باوجود ایک ملازم کی گود میں لدھا ہوا موجود تھا۔ ریلوے سٹی دیتی ہوئی پلیٹ فارم پر آ کر رکی۔ اس سے ایک مشن وقت جوان گاڑی سے برآمد ہوا جیسے ہجوم نے گھیر لیا۔ مجھے ان تک پہنچتے پہنچتے کافی عرصہ لگ گیا لیکن انہوں نے مجھے ایک نظر میں پہچان لیا اور گود لے کر سینے سے لپٹا لیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ میرے چھوٹے چچا محمود میاں ڈاکٹر محمد حسین خان مجھے اپنے ساتھ لے کر جامعہ ملیہ داخلے کے لیے جائیں گے، جو اس وقت قرولباغ میں کرائے کی عمارتوں میں تھی۔ کرائے کی عمارتوں میں تھی۔ جامعہ ملیہ میں میرا داخلہ 10 اگست 1937 کو درجہ دوم میں ہوا۔ چھوٹے چچا نے اندازہ سے میری عمر 1 سال یا 4 مہینے زیادہ لکھوا دی، جو بات کو میٹرک کے سرٹیفکیٹ میں جوں کی توں رہی اور مجھے یونیورسٹی کی ملازمت سے اس مدت کے قدر پہلے ریٹائر ہونا پڑا۔ جامعہ ملیہ میں میری رہائش بچوں کی اقامت گاہ خاکسار منزل میں رہی، جس کے وہ حصے تھے ایک کے نگراں ارشاد الحق صاحب تھے اور دوسرے کے حصہ جہاں نسبتاً زیادہ عمر کے بچے رکھے جاتے تھے اختر حسین فاروقی صاحب۔ ارشاد الحق صاحب ہمارے انگریزی کے استاد بھی تھے اور اختر صاحب ڈرائنگ روم کے ٹیچر۔ ساتھی طلبہ میں یو پی کے آفتاب قائم گنج کے شفیق احمد اور کدوئی خاندان کے اخلاق الرحمان کدوئی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ میرے اور آفتاب کی دوستی ہمہ وقت کی یکجائی پر اختر صاحب کو اکثر فقرہ کسے ہوئے سناتے۔ حالانکہ معاملہ صرف افلاطونی محبت تک محدود تھا۔ پانچوں وقت کی نماز کی پابندی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد لائن بنا کر سب طالب علم کچھ فاصلے پر پہاڑیوں سے گھرے ہوئے میدان کا رخ کرتے۔ مہاجر جامعہ کالج کے استاد پروفیسر کلاٹ عمر اور غزر دونوں سے غیر متناسب ڈھونگ بیٹھ اور دوڑ لگواتے۔ شاید شام کو ہاکی کھیلنے کے لیے پھر اسی میدان میں آنا پڑتا تھا۔ جہاں تک جسمانی ترتیب اور ڈسپلین کا تعلق ہے اس میں کلاٹ صاحب کے انہماک کا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ ایک مالاباری عیسائی تھے جو نہ معلوم کس طرح 1922 میں بھٹک کر جامعہ آ گئے تھے۔ کنوارے تھے اور دمہ کے دائمی مریض۔ بئی ہما انہوں نے کالج میں درس دینے کے لیے جامعہ کے اسکول کے بچوں اور کالج کے طلبہ کی جسمانی حالت بہتر بنانے کا بیڑا اٹھا لیا تھا۔ دہلی کی کڑاکے کی سردی میں بھی وہ سب سے پہلے میدان میں پہنچتے اور ورزش اور کھیل دونوں میں بساط بھر
हिस्सा लेते। उनका किराया का मकान कुरलबाग की पहाड़ियों के किनारे पर था, जहां से उनकी हमावक्त मौजूदगी का एहसास रहता। उनकी शख्सियत का एक दिलचस्प पहलू ये था कि अलीगढ़ और दिल्ली में एक उम्र बताने के बाद भी वो बहुत टूटी फूटी हिंदुस्तानी बोल सकते थे। चुनांच जब कोई लड़का ढूंढने लगता, ढूंढ लगाते अपना सीना जमीन पर टेक देता या दौड़ में फसड्डी रह जाता, तो उसके चूतड़ों पर हाथ मार कर कहते, तुम गधा उल्लू का मुआफिक या तुम धोती वाला। हालांकि मकान पर खुद बयान और अ, किस्म की धोती मलबूस रहते थे। उन्होंने एक तरह का कॉलेज की आला दरसियात के अलावा नौ नहान वतन की जिस्मानी तरबियत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। जामिया मिलिया के नज्मो जब्त में उस जिस्मानी वर्जिश का और तरतीब का खास मकाम था। कौम के नन्हे सिपाही को एक रोशन जहन और सीरत के साथ एक मजबूत जिस्म की भी जरूरत थी। आज जामिया मिलिया के लॉर्ड साहब जैसे खुदाई खिदमतगार को बिल्कुल भूल गए हैं। उन्होंने एक पूरी नस्ल की जहनी और जिस्मानी तरबियत की है। जिस्मानी तरबियत की शहादत के लिए मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। चूंकि कैलॉट साहब का कॉलेज में पढ़ाते थे और मैं उस स्कूल का तालिब इल्म था, इसलिए ज़हनी सतह पर उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी है उनका जिक्र एक सीनियर जामिई डॉक्टर यूसुफ हसन खां की ज़बानी सुनिए। हमारे इस्तिज़ा में सबसे ज्यादा लायक और फायज मिस्टर कॉलर्ट थे, जो सियासत और तारीख के प्रोफेसर थे। निसाब के अलावा वो तालिब इल्मों को आम मालूमात पढ़ाने के लिए रोजाना एक लेक्चर देते थे, जो निहायत दिलचस्प होना था। उनका मौजू बदलता रहता था, कभी मजहब और कभी अखलाक, कभी इल्म इंसान, एंथ्रोपोलॉजी। तर्ज बयान सुस्ता और बरजस्ता था। अंग्रेजी जबान पर बड़ी कुदरत थी, बोलते भी अच्छे थे, लिखते भी अच्छे थे। तारीख के अलावा उन्हें अंग्रेजी अदब से भी खास लगाव था। लॉर्ड साहब के लेक्चरों में हमें ऐसा महसूस होता जैसे हमारे सामने इल्म की दुनिया का दरवाजा खुल गई हो, जो अब तक बंद थे। लॉर्ड साहब की वज़ा और सीरत के उस्ताद आज हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में नापायद हैं। लॉर्ड साहब का ओढ़ना बिछौना जामियाती यादों की दुनिया। लॉर्ड साहब की आज कोई यादगार जामिया मिलिया में नहीं, साहब की आज कोई यादगार जामिया मिलिया में नहीं, लेकिन उनके शागिर्दों के दिलों में मौजूद है। रख्तंदो दिले न अज दिले माँ। जामिया मिलिया के दारुल अकामा की जिंदगी में स्पोर्ट्स की खास अहमियत थी। वर्जिश के मैदान से लौटते तो बड़े पापे और एक प्याली दूध का नाश्ता मिलता। जी मैं कहता था, कायमगंज की मक्खन मलाई और घी वाले मसूद कहाँ आकर फंसे हो। लेकिन रफ्ता रफ्ता इस तज़किए नफ्स का आदी होता गया। नाश्ते के बाद किताबें लेकर स्कूल चले जाते, जिसकी इमारत खाक और मंजिल से एक फलांग के फासले पर थी। यही शेखुल जामिया का सदर दफ्तर था। छोटे बच्चों के दारुल अकामा की निगरां इरशादुल हक साहब एक बाउसूल शख्सियत के इंसान थे और बच्चों से हमदर्दी भी रखते थे और डिसिप्लिन पर नजर भी। पाबंदी नमाज और औकात पर असरार करते। बच्चों को सफाई की ताकीद रहती। सुबह उठते ही हर बच्चा अपना बिस्तर खुद ठीक करता। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। वो मेरा खास तौर पर ख्याल रखते थे। 1972 में जब मैं जामिया मिलिया का वाइस चांसलर होकर ओखला पहुंचा, तो उस वक्त वो बिस्तर मर्ग पर थे। मुझे देखकर उनकी आंखों में वो चमक आ गई जो एक उस्ताद को अपने चहीते शागिर्द को आला मनसब पर फायज देख कर होती है। मेरी तवज्जो जामिया मिलिया की ज़ेर तामीर
जामिया मस्जिद की जानिब खुसूसी तौर पर मबजूल कराई और ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं उनके यहाँ एक वक्त का खाना जरूर खाऊं। मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि जल्दी क्या है, जब आपकी तबीयत संभल जाएगी तो खा लूंगा। लेकिन उसकी नौबत कभी नहीं आई और वो अपने मौला से जा मिले। खाकसार मंजिल के बड़े बच्चों के दारुल अकामा के जहां मैं चंद साल के बाद मुंतकिल हो गया था, निगरां अख्तर हुसैन फारूकी साहब थे, जिन्होंने लखनऊ के स्कूल ऑफ आर्ट्स में तालीम पाई थी। वो अपने फन के एक कामयाब उस्ताद थे। तालिब इल्मों में आर्ट्स से दिलचस्पी पैदा कर देते थे। हुलिये के एतबार से भी वो आर्टिस्ट मालूम होते थे। नई नई शादी हुई थी। बेगम को 2 मुख्तसर से कमरों में उन्हें बहैसियत निगरां मिले हुए थे। से पर्दा वो रखते थे। हालांकि हम में से किसी की उम्र उस वक्त 14 वर्ष से ज्यादा की नहीं होगी। बोर्डिंग हाउस के उस हिस्से में अखलाकुर रहमान कदवई मेरे रूम फेलो थे। अखलाक तकरीर के एतबार से औसत दर्जे के तालिब इल्म थे, लेकिन इंसानी मालूमात में उनकी सूझबूझ मुझसे अच्छी थी। खुद जोड़ तोड़ से फूड मास्टर बन जाते और मुझे कह सुनकर प्राइमरी मिनिस्टर मिनो देते। उन्हें अपनी दुनिया और मेरी आकबत का बहुत ख्याल रहता था। मैं इस बार उस इंतखाब पर बहुत ज्यादा खुश नहीं था। खास तौर पर दिल्ली के कड़ाके के जाड़े में फजर की अजान के लिए सुबह सुबह उठना कयामत था। वुजू के लिए गर्म पानी का इंतजाम बस यूं ही साथ था। ज्यादातर हमें कुएं के ताजा पानी पर इत्तेफाक करना पड़ता था। चुनांचे इन हालात के तहत अक्सर ही मन मतजल्जल हो जाता। एक सुबह मेरी आंख जद देर से खुली, वो फट चुकी थी, इसलिए तड़प कर उठा और बगैर वजू किए बरामदे में खड़ा होकर आजान देना शुरू कर दी। आखिर सुबह उस वक्त तक उठ चुके थे और गर्म पानी से वजू करके आजान का इंतजार कर रहे थे। जो ही मैंने अल्लाहु अकबर कहा, वो अपने कमरे से बरामद हुए। एक नजर में भाप लिया कि मैं बगैर वजू के आजान तड़खा रहा हूँ। चुपके से पीछे आकर उन्होंने ऐन आजान में मेरा कान पकड़ लिया। आजान यकलख्त रुक गई। बोले, हट नालायक, प्रेयर मॉनिटर हुआ और बगैर वजू के आजान देते हो। गालिबन मेरी उस तरतीब के बारे में वो कई रोज से शुबह कर रहे थे और मौका की ताक में थे। मैंने अपने जुर्म का फौरन इकरार कर लिया और उसके साथ ये एतराज किया कि मास्टर साहब, इस कड़ाके के सर्दी में बगैर गर्म पानी के वजू करना तकरीबन नामुमकिन है। मैंने खुदा को हाजिर और नाजिर कर लिया था, लेकिन वो कब मानने वाले थे। मुझे तलबा के सामने रुसवा किया गया। अलबत्ता उस वाकया का ये मुस्बत नतीजा जरूर निकला कि दूसरे रोज से फजर की नमाज के लिए तालिब इल्मों को गर्म पानी मिलने लगा। मैं अपनी आकिबत खराब करके अपने साथियों की दुनिया अच्छी कर दी। इसी जमाने का एक और दिलचस्प वाकया याद आता है। तालीमी साल के शुरू में तालिब इल्म अपने घरों से आते तो अज किस्म हलवा वगैरह जरूर साथ लाते, जैसे वो सुन्नत कर रखते ताकि ज्यादा दिनों तक लुत्फ अंदोज हो सके। अखलाकुर रहमान ने सूंघ लिया के बाज मतमूल घरानों के साहब तालिब इल्म उस साल हलवा और खुश्क मेवा जात किस्म की चीजें काफी मिकदार में लाए हैं। वो अपने खास दोस्तों के अलावा किसी को उनकी हवा तक नहीं लगने देते। मुझसे बोले कि फजर की नमाज में जिस दिन अख्तर साहब न आए और तुम अमामत के वास और रोज सूरत तवील कर देना और रुकू में सजदा में खुशू व खुजू पढ़ देना। चुनांचे एक रोज यही हुआ और ऐसा ही